बांग्लादेशी अवाम के लिए पाकिस्तान का वीजा फ्री। पाकिस्तान आने के लिए बांग्लादेशी भाइयों को वीजा लेने की जरूरत नहीं है। आप बिना वीजे के पाकिस्तान आ सकते हैं, पाकिस्तान देख सकते हैं, पाकिस्तान में घूम सकते हैं। आपको पाकिस्तान आने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं है। ये एक बड़ी खबर है जो निकल के सामने आ रही है कि बांग्लादेशी भाइयों के लिए पाकिस्तान का वीजा फ्री कर दिया गया है और बांग्लादेशी भाइयों को पाकिस्तान का वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ा एक खुशखबरी है जो बांग्लादेश से आई है। और पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जो लगातार मुलाकातें कर रहे थे बांग्लादेशी आला हुकाम के साथ, वो आज रंग ला रही हैं कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने बांग्लादेशी अवाम के लिए पाकिस्तान का वीजा फ्री कर दिया है और बांग्लादेश के लोगों को पाकिस्तान आने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तो आज इसी हवाले से वीडियो है, वीडियो पहले देख लेते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। সাম্প্রতিক বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় পাকিস্তানে বাংলাদেশের পক্ষে ব্যাপক জনমত দেখা যায়। আন্দোলনের প্রভাব পাকিস্তানেও ব্যাপকভাবে পড়ে। অনেক পাকিস্তানি নাগরিক বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে আনন্দ উৎসব করেছে সে সময়। এবার বাংলাদেশিদের জন্য সুখবর দিয়েছে পাকিস্তান সরকার। 2 সপ্তাহ আগে নতুন ভিসা নীতিমালা ঘোষণা করেছে পাকিস্তান। এর আওতায় বাংলাদেশ সহ 126টি দেশের নাগরিকরা ভিসা ছাড়াই দেশটিতে যাতায়াত করতে পারবেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাই কমিশনার আহমদ মারুফ। সোমবার সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর অফিস কক্ষে তিনি সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনায় এসব কথা জানান তিনি। সাক্ষাতে দুই দেশের মধ্যে বন্যা পুনর্বাসন, পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন, ভিসা প্রাপ্তি সহজীকরণ, সরাসরি প্লেনের ফ্লাইট চালু, কৃষি গবেষণায় সহযোগিতা সহ পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকের শুরুতে উপদেষ্টা রাষ্ট্রদূতকে স্বাগত জানান। তিনি রাষ্ট্রদূতকে বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বন্যার বিষয়ে অবহিত করেন। রাষ্ট্রদূত পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের বন্যা দুর্গতদের জন্য উপকরণ দিয়ে সহায়তার আশ্বাস দেন। হাই কমিশনার বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রভাব পাকিস্তানে পড়েছে উল্লেখ করে বলেন, সে সময় অনেক পাকিস্তানি নাগরিক বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে আনন্দ উৎসব করেছে। বর্তমান সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ বিষয়ে জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন, দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দ্রব্যমূল্যের লাগাম টেনে রাখাই সরকারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। পাকিস্তানও একই ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে মর্মে দুজনেই ঐক্যমত প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রদূত বিগত 15 বছরে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে যে শুষ্কতা পরিলক্ষিত হয়েছে তার উত্তরণ ঘটিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদারের আহ্বান জানান। তাছাড়া দুই পক্ষ পারস্পরিক ভিসা সহজীকরণের বিষয়ে সম্মত হন। এ সময় রাষ্ট্রদূত বলেন, 2 সপ্তাহ আগে পাকিস্তান নতুন ভিসা নীতিমালা ঘোষণা করেছে। এর আওতায় বাংলাদেশ সহ 126টি দেশের নাগরিক ভিসা ছাড়াই পাকিস্তানে যাতায়াত করতে পারবে। রাষ্ট্রদূত পারস্পরিক সম্পর্ক ও ব্যবসায়িক স্বার্থে দুই দেশের মধ্যে পুনরায় সরাসরি ফ্লাইট চালুর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি জানান, সর্বশেষ 2018 সালে দুই দেশের মধ্যে সরাসরি ফ্লাইট চালু ছিল, যা পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স অপারেট করত। বৈঠকে মানব পাচার প্রতিরোধ, সন্ত্রাস দমন ও কৃষি গবেষণা খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और ये बड़ी कामयाबी है कि बांग्लादेशी लोगों के लिए, बांग्लादेशी भाइयों के लिए पाकिस्तान का वीज़ा फ्री कर दिया गया है कि बांग्लादेशी भाई जब चाहें पाकिस्तान आ सकते हैं और बांग्लादेशियों को पाकिस्तान का वीज़ा लेना नहीं पड़ेगा। ये एक बड़ी खबर है और ये ताल्लुकात को भी बेहतर बनाएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों को बेहतर बनाएगा। जैसे ही बांग्लादेश के अंदर अवामी हुकूमत आई है, अवामी नुमाइंदे आए हैं, तो तब से पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश के नारे गूंज रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश के झंडे लहरा रहे हैं। आप स्टेडियम में देखें, बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में आई टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए और जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान को शिकस्त दी। तारीख में पहली दफा इतना बड़ा
बंगला Clean वॉश sweep हुआ करती है है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को, और उसके बाद अब देखें तो बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात कितने बेहतर हो रहे हैं। स्टेडियम के अंदर बांग्लादेश के झंडे लहराए जा रहे हैं, स्टेडियम के अंदर बांग्लादेश के जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये साबित करता है कि पाकिस्तानी बांग्लादेशी भाइयों से कितना मिलना चाहते हैं और कितना प्यार रखते हैं। ये 1971 को सोशल मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना फाल नहीं था कि पाकिस्तानियों को इस बात का अंदाजा हो सके कि बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन आज के टाइम जब पाकिस्तानियों को पता चलता है कि बांग्लादेश तो हमारा हिस्सा था, बांग्लादेशी तो हमारे भाई थे, लेकिन आज देखें तो पाकिस्तान की तरफ से ऐसे इक़दामात उठाए जा रहे हैं जिसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान करीब आना शुरू हो चुके हैं। तो जी वसीम भाई, क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में? बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशखबरी की बात है। सबसे पहले तो बांग्लादेशी भाइयों के लिए, क्योंकि जब बांग्लादेश के अंदर नई हुकूमत कायम हुई तो बांग्लादेश की आवाम ने इंडिया गो का नारा लगाया और ये इरादा किया कि हम लोग सैरो तफरीह के लिए इंडिया के अंदर, भारत के अंदर नहीं जाएंगे। तो अब भारत के अंदर अगर नहीं जाएंगे तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो होना चाहिए था जो उनके लिए आसानी से हासिल हो सके। भारत क्योंकि उनके साथ बड़ा आसानी के साथ आना जाना था उनका, तो पाकिस्तान ने इस मौके पर ये वाला इनको सहूलत देकर बगैर वीजे के पाकिस्तान आने की जो आमद हुई है, ये बड़ी खुशखबरी की बात है बांग्लादेशी भाइयों के लिए। हमारा भी बड़ा दिल करता है कि बांग्लादेश के अंदर जाए, तो हमारे लिए खुशखबरी नहीं आ सकती जुनैद भाई? इंशाल्लाह जरूर आएगी। एक एक करके ये रिश्तों को बेहतर बनाने वाले कदम उठेंगे। और सबसे ज्यादा तो मैं पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को मुबारकबाद देता हूं। पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर ढाका के अंदर है, मोहम्मद मारूफ, सैयद मारूफ साहब, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है, बहुत कमाल का काम किया। और ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए जो उन्होंने काविश की है, जो कदम उठाए हैं, ये सहराने वाले हैं, ये तारीफ करने वाले हैं। और मैं आइंदा भी देखूंगा कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी बांग्लादेश जाने की। और इंशाल्लाह हम लोग भी उनमें शामिल होंगे जो बांग्लादेश का विजिट करेंगे, बांग्लादेश के भाइयों से मिलेंगे, बांग्लादेश की सरजमी को देखकर फख्र महसूस करेंगे कि ये हमारे भाई हैं। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर है तो मुबारकबाद हासिल कर ली, अब बारी है बांग्लादेश के हाई कमिश्नर की कि वो कैसे इकदाम करते हैं, हमें आने का मौका वहां पर मिलता है कि नहीं मिलता। जी जरूर वो इकदामात करेंगे। अभी पाकिस्तान के अंदर जो बांग्लादेश के हाई कमिश्नर हैं वो भी चेंज हो चुके हैं, तो उम्मीद यही है कि वो भी पाकिस्तान की तरह बेहतर फैसले करेंगे और पाकिस्तानियों को एक बड़ी खुशखबरी देंगे ताकि पाकिस्तानी भी बांग्लादेश की सरजमीन को देख सकें, पाकिस्तानी भी अपने भाइयों से मिल सके। ये बड़े प्राउड की बात होती है कि हम लोग किसी को अपना भाई कहते हैं, हम लोग किसी को अपना कहते हैं। एक प्राउड का मोमेंट है कि हम लोग बांग्लादेश को अपना भाई कहते हैं और अपने बाजू कहते हैं, और अपने से अलहदा कभी हमने नहीं किया। और बांग्लादेश कल भी हमारा भाई था, आज भी हमारा भाई है, और इंशाल्लाह जब तक ये जिंदगी है, जब तक ये जान है, जब तक हमारे बच्चे आने वाले हैं, वो भी बांग्लादेश को अपना भाई समझेंगे। और ये बांग्लादेश हमेशा पाकिस्तान का बाजू बन के रहेगा और पाकिस्तान हमेशा बांग्लादेश का एक हिस्सा बन के रहेगा। और ये दोनों इंशाल्लाह आपस में प्यार और मोहब्बत से एक दफ़ा फिर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।